ऑनलाइन फ्रेंड्स, इसमें स्क्रीन विजिबल, वॉइस ऑडिबल। ऑनलाइन फ्रेंड्स, हेलो। ऑनलाइन फ्रेंड्स, आवाज आ रहा है? हेलो। अरे कोई बोल नहीं रहा है, कोई यस प्रॉब्लम सर। है? अरे कितना टाइम लगाते हो यार, गुस्सा है हम पे? Yesterday one student has written one message of streaming. If it's stop streaming because there was disconnect of light and internet and 3-4 times that happened. So पता नहीं कब वो स्ट्रीमिंग बंद हो गया। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ याद दिलाना इन बिटवीन है, बिकॉज वंस आई स्टार्ट इन टू अ फ्लो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम चेक ऑन ऑल दोज थिंग्स. So if you people are checking online, please let me know within lecture. Lecture चालू रहते समय ही बोल देना स्ट्रीमिंग बंद हो गया. That will be easy thing to handle. लेक्चर के बाद बोल के कोई मतलब नहीं बनेगा फिर. Okay. Okay, should we start then? आता कॅमेरा गेला येता याचा कसं काय येतं? आता 2 वेळेस लाईट डिस्कनेक्ट झाल्या, 2 वेळेस ना, म्हणजे काय करणार? नाही नाही, चुकी नाही, पण ते शेवटी ब्लेमिंग तसंच होतं ना की बंद झालं, रेकॉर्डिंग नाही झालं कालचं. 3-4 वेळेस काल डिस्कनेक्ट झालं. नाही मी एकदा लेक्चर चालू झालं की माझं कुठंच कॉन्सन्ट्रेशन नाही राहत. आय ओनली कॉन्सन्ट्रेट ऑन लेक्चर. इक्विपमेंट आय एम लिस्ट बॉदर्ड फॉर इक्विपमेंट. नाही लक्षात येत नाही, लक्षात जातच नाही ना समोरचा. हां ठीक आहे, ओके. नसेल कॅमेरा तर सोडा. इफ इट इज नॉट देअर. चलो लेट स्टार्ट ऑनलाइन फ्रेंड्स. हां दिसते ना. यस सर. नाही हे नाही झालं, कॅमेरा याला कनेक्ट नाही झालेला. स्क्रीन एक्सेल शीट दिसते.
एक्सेल विजिबल आहे सर आता. हां हे नाही दिसत आहे तिथे. हां याच्यात आयपॅड ना. ठीक. Okay, so we were on illustration number 32 yesterday. Let's start with this. Friends, we are already 15 minutes late. हा प्रॉब्लेम सॉल्व पण झाला पाहिजे होता आपला. Anyway, not an issue. You are required to prepare a selling overhead budget from the estimates given below. So we have to prepare a selling overhead budget. Overheads related है. दिख रहा है ना सब कुछ? Everything is fine. Online friends, everything is fine. Advertisement fixed येस सर. 1000. Salaries and sales department fixed 1000. Expenses of sales department fixed 750. Salesman remuneration fixed 3000. Salesman's commission at the rate 1% on sales excluding agent sales. ठीक है. Carriage outward estimated at 5% on sales. Agent commission 7.5% on agent sales. The sales during the period were estimated as follows. सर ओल्ड बुक पेज नंबर ओल्ड बुक पेज नंबर कल का ही मैडम कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग 537 537. सीक्वेंस चेंज नहीं कर रहे. आई आर नॉट चेंज द सीक्वेंस. इलिस्ट्रेशन 41. ओके Outward carriage outward estimated 5% on sales. Sales during the period were estimated as follows: 80,000 including agent sale 8,000, 90,000 including agent sale 10,000 and 10,000. So what we have to prepare a budget estimate of this element. Okay. So let's prepare statement of overhead budget. Overhead sales overhead budget. Sales overhead budget. Particulars. सेल्स है, 3 कैटेगरी का सेल्स है. कितना सेल्स, हाउ मच सेल्स दे हैव सेइंग? 80,000 सेल्स, 90,000 सेल्स एंड 1 लाख सेल्स. सो 3 कॉलम करना है. सेल्स. So total sales 80,000, 90,000 and 1 lakh. बराबर ना. ओल्ड बुक पेज नंबर काय आहे? काल होता का तुम्ही? 573 537. नहीं, yesterday you were there in lecture. नो सर Then no problem, then your query is correct. 538 का 567 537 ग. इलिस्ट्रेशन 41 ओल्ड बुक. ठीक है. Chalo. Now these sales, this 80,000, 90,000 and 1 lakh sales, that we will categorize into direct sales and agent sale. बराबर. एजेंट सेल कितना है? 8,000, 10,000 and 10,500. 8,000, 10,000 and 10,500. Agreed? This is the information which has been given. Sales by agent and direct sales. Now what will be the direct sales? Now out of total sales 80,000, agent sale is 8,000. So direct sales is nothing but total sales minus agent sale. Total sales minus agent sales. 90,000 minus 10,000.
1 lakh minus 10,500. Done. So these are the basic information that we have plotted over here. Now basis this, we have been asked to prepare a sales overhead budget, and that expenses are categorized into दो heading दे देते हैं. Now these are expenses. One will be fixed number A, fixed expenses, and B will be variable expenses. Let's start one by one now. Should we start? Now, first element is what? Advertisement. Advertisement कितना है? Fixed nature का. They have given the information. Advertisement. Now, advertisement, if it is fixed in nature, so whatever sales it is, it will remain same, fixed. It will not change. बराबर ना? Fixed nature of expenses will remain fixed, irrespective of volume. Volume either it's zero, increase, decrease, it makes no difference. Fixed expenses will remain fixed. Now whether my volume is 80,000, 90,000 or 1 lakh. Understood? Second element, salaries of sales department. This is also fixed. Salaries of sales department. Salaries of sales department. कितना ही है? That is also 1,000, and since it is fixed, it will remain same throughout the volume. After, expenses of sales department, fixed 750. So this is also fixed. Expenses of sales department. Fixed है, चारों में जगह पे सेम. Salesman remuneration fixed 3,000. Salesman remuneration ये भी fixed है 3,000 रुपये. Fixed in all the cases. Right? Now we will prepare next head. That is salesman commission at the rate 1% on sales excluding agent sales. So salesman को commission भी दिया जाता है. कितना salesman का commission है? Salesman variable है. See now it is 1% on total sales excluding agent sale. So if sales increases, commission will increase. If sales reduces, commission will reduce. बराबर ना? Because it is 1% on sales. Okay. So salesman's commission. कितना है? 1% on direct sale. बराबर ना? Direct sale से excluding agent sale. बराबर? So we have already categorized. ये categorize करके रखा है हम लोगों ने. So how much is direct sales? 72,000 into 1%. 1% ही है ना? 720 rupees. In this case, 80,000 into 1%. In this case, 89,500 into 1%. So salesman's commission 1% on direct sale 720, 800 and 895. ठीक है. Next, after salesman's commission, carriage outward estimated 5% on sales. So carriage outward bracket में 5% on total sales. Total sales. How much is total sales? 80,000 बराबर into 5% ना? Into 5%. So 4,000 rupees. In this case, 90,000 into 5%. In this case, 1 lakh
into 5%. So carriage outward worked out to 4,000, 4,500 and 5,000. It is on total sales. ऐसा नहीं बोला agent sales ऐसा कुछ. Carriage outward is 5% on sales. Next, agent commission 7.5% on agent sale. Agent commission 7.5% on agent sales. So agent sales कितना है 8,000 उसका into 7.5%. In this case agent sale is 10,000 into 7.5%, and in this case 10,500 into 7.5%. So this is how the figures of agent commissions and all those things is derived. Clear? Next, the sales categories खत्म हो गया. So total fixed expenses, subtotal, and इसका subtotal. A plus B, total cost. Total cost is A plus B. Total cost A plus B 5750 plus 5320. $12,433. Done? Clear? Any question? Online friends, any question? Understood, No, sir. sir. Okay. चलो. Now let's go to the next element of budget. Cash budget. अब ये सब चीज के लिए पैसा लगता है. For purchasing material we required cash. Asset purchase करना है we required cash. Labor को payment, wages payment करना है we required cash. Overhead incur करना है we required cash. अगर कैश का ही प्रॉब्लम है तो ये खर्चा कैसे बजट करके क्या मतलब है? So we need to have a proper cash budget also in place to support the expenses that you are making. ठीक है? All these are theoretical part. Let's directly jump on illustration number 33. New book 536 page number, old book 539 page number, illustration number 42, new book में illustration number 33. ठीक है, देखो बजटिंग में अगर कुछ थोड़ा अगर डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा अगर कुछ घुमा फिरा के आ सकता है तो यहाँ पे. अदरवाइज बजटिंग में कुछ ऐसा बहुत प्रॉब्लमेटिक है ऐसा कुछ नहीं है. द फॉलोइंग सेल्स बजट इज गिवन बाय वैन डिस्की सेल्स कंपनी फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022. सेल्स दिया है अप्रैल मई जून. क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड एज फॉलोज. कैसे क्रेडिट सेल्स कलेक्ट होते हैं? 70% इन द मंथ ऑफ सेल्स, 20% in the following month, 8% in the second month following sales and 2% uncollectible. 2% पैसा मिलता ही नहीं. ठीक है. The accounts receivable balance at the beginning of the second quarter is rupees 18,000, 3,600 of which represent uncollected. February sales and 14,400 uncollected for March sales. Calculate the total sales for February and March. Compute the budgeted cash collection from the sales for the month without prejudice to the answer to the part 1. Assume that February sales equals to 40,000 and March sales equals 50,000. ठीक है. So read the question carefully. 2 बार 3 बार read करना है तो 2-3 बार read करो. Then we will solve it.
ठीक है. Should I explain the question again? Now what they have given, see, sales find out करने, कैश बजट में sales find out करने. Following sales budget is given by the company for the quarter June quarter 2022. अप्रैल में जून में कितना सेल्स हुआ है दिया है. अप्रैल 45, 50,000, 60,000, टोटल 1,50,000. क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड एज फॉलोज. नाउ क्रेडिट सेल्स कलेक्टेड एज फॉलोज मीन्स व्हाट. अप्रैल का अगर हम लोग कर लेते हैं, जस्ट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देन वी विल सॉल्व इट. अप्रैल का सेल्स उसका 70% कलेक्टेड इन अप्रैल. बराबर. अप्रैल सेल है, अप्रैल सेल्स ऑफ अप्रैल, जो अप्रैल में जो सेल्स हुआ है उसका 70% कलेक्टेड इन अप्रैल सेम मंथ में. एग्रीड. 20% इन फॉलोइंग मंथ. सो 20% कलेक्टेड इन फॉलोइंग मंथ. फॉलोइंग मंथ कौन सा रहता है? मई. हाँ, आगे वाला फॉलोइंग मई में, पीछे नहीं जाना है, आगे मई. फर्दर 8% इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल. 8% यहाँ पे कलेक्ट होता है सेकेंड मंथ मतलब जून में. बराबर. ठीक है. सो टोटल मेरा अभी तक कलेक्शन हुआ है 98%. 2% अनकलेक्टेबल. सो 2% नॉट रिसीव्ड, अनकलेक्टेबल, उसको पैसा मिलता ही नहीं 2%. ठीक है. दिस इज हाउ the money is being collected for the particular month and this is cycle. If I say it is month of May, then April will get with replaced with May, May will get with June, June will get with July. ठीक है. तो साइकिल कल हमने देखा नहीं क्या, ओपनिंग स्टॉक बिकम क्लोजिंग स्टॉक, तो ऐसे साइकिल में चला जाएगा. अंडरस्टूड अप टू हियर. द अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड क्वार्टर इज 18,000. एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड क्वार्टर अकाउंट्स रिसीवेबल कितना है? बिगिनिंग ऑफ सेकेंड क्वार्टर इज 18,000 रुपीज. 3,600 ऑफ विच रिप्रेजेंट्स अनकलेक्टेड फेब्रुवरी सेल्स. फेब्रुवरी का सेल्स कितना है? 3,600 अनकलेक्टेड एंड 14,400 ऑफ मार्च. सो आउट ऑफ 18,000, 3,600 एंड 14,400, टोटल 18,000 है अनकलेक्टेड. सो एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड क्वार्टर मतलब एट द एंड ऑफ जून एंड में मेरे पास अनकलेक्टेड अमाउंट कितना है? रिसीवेबल अमाउंट इज 18,000, वो जो मैंने यहाँ पे लिख लिया 18,000. नाउ आउट ऑफ दिस 18,000, 3,600 रिप्रेजेंट फेब्रुवरी सेल्स. ये फेब का सेल है. फेब के सेल में से कुछ बाकी है ना आना? यस और नो? देखो फेब में कुछ सेल किया रहेगा, उसका 70% रिसीव्ड इन फेब, 20% रिसीव्ड इन मार्च, 8% विल रिसीव्ड इन अप्रैल, 2% विल डाई. एग्रीड और नॉट? सेम वे 14 फेब का ये कौन सा है? मार्च का सेल्स है. मार्च का सेल्स ऐसे मिला कि मेरे पास 18,000 रुपये अभी भी रिसीवेबल बाकी है बाय एंड ऑफ जून. अंडरस्टूड दिस? हाँ या ना? अभी उन्होंने क्या बोला है? कैलकुलेट द टोटल सेल्स फॉर फेब एंड मार्च. सो फेब एंड मार्च में टोटल सेल्स कितना है? दैट्स व्हाट फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है. हाउ मच अमाउंट इज देयर फॉर टोटल सेल्स. सी फेब का अनकलेक्टेड मीन्स रिसीवेबल कितना है? इज 3,600. यस और नो? रिसीवेबल कितना? हम लोग आई हैव स्टार्टेड द सॉल्यूशन. कैलकुलेट द सेल्स ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च. हमको सेल्स कितना दिया है? अप्रैल में जून का दिया है. फेब एंड मार्च इसके पहले वाला क्वार्टर का है, उसका फेब एंड मार्च का सेल्स फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं अभी तक? पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट में गए नहीं मैं अभी तक. आई हैव नॉट एंटर्ड इनटू सेकंड एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट का क्वेश्चन समझ में आ गया. फेब एंड मार्च का कितना सेल्स है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है. नाउ अगर फेब में मैं यहाँ पे इसको जस्ट आई विल रिप्रेजेंट फेब सेल्स. आई विल जस्ट रिप्रेजेंट इट एज अ फेब. ओके. So 70% will get collected in Feb. Agreed?
20% will get collected in March. Agreed? May में अप्रैल में इतना कलेक्ट हो जाएगा. So only 2% element है. This amount is how much? It is only 2%. % एलिमेंट रिप्रेजेंट करता होगा. ठीक है, हम लोग उसमें से फाइंड आउट करेंगे हाउ मच इज द एलिमेंट विच इज रिमेनिंग. ठीक है, अंडरस्टूड ना. इन द सेम वे इफ आई रिप्रेजेंट फेब का मार्च कर देता हूँ, इसमें मार्च का सेल है. सो योर 70% इज कलेक्टेड इन द सेम मंथ. योर 20% विल बी कलेक्टेड मार्च में. दिस विल बी इन फेब, मार्च, अप्रैल, बराबर, मई. ऐसा कलेक्शन होता जाएगा. एग्रीड. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. द अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड क्वार्टर. सेकेंड क्वार्टर कब बिगिन होता है? अप्रैल में. एट द स्टार्ट ऑफ अप्रैल the receivable is how much? 18,000. April का start में receivable is 18,000. Now out of that 18,000, 3,600 represent February sales and 14,400 represents March का sale. So कितना collect हुआ होगा वो find करना है and balance sales will be derived. Not a difficult question at all. Now let's, ये question समझ में आया है कि नहीं? अभी तक भी नहीं समझ में आया? एक बार रीड कर लो, फिर से रीड कर लो. प्लीज रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. सर एकच क्वेश्चन आहे सर. जेव्हा ते म्हणतात की 14,400 अनकलेक्टेड मार्च सेल, अनकलेक्टेड सर, दॅट मीन्स बॅक डेट प्लस जे 20% आहे प्लस जे 8% आहे टोटल. ओके ओके. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन समझ में आ गया? आई एम जस्ट कैचिंग नाउ, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फेब्रुवरी. Just understand it now. Feb में sales कितना है? We don't know. Sales of Feb month, वही find out करना है. We don't know what is the sales of Feb month. Agreed? जो भी कुछ amount हुआ होगा, whatever amount is, ये यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ. ठीक है. 70% is collected in Feb, बराबर. सो यहाँ पे जितना भी सेल हुआ रहेगा उसका 70% विल कम ओवर ईयर, विद इन फेब में आ जाएगा. एग्रीड. 20% इज कलेक्टेड इन मार्च. 20% कलेक्टेड इन मार्च. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन एकदम सिंपल है. इसका 20% कलेक्टेड इन मार्च. सो क्वार्टर खत्म हो गया, मार्च कंप्लीटेड, क्वार्टर खत्म हो गया. तो कितना कलेक्शन किया? अगर मेरा ये 100 रुपये का सेल रहेगा तो मैंने कलेक्शन कितना किया है? 70 and 20. सो मेरा बैलेंस कितना बाकी है? 10. एग्रीड. मेरा बैलेंस कितना बाकी है? 10%. नाउ दिस 10% रिप्रेजेंट हाउ मच? 3,600 रुपीज. यस और नो? व्हाट दे आर सेइंग, टोटल रिसीवेबल इज 18,000 और स्टार्ट ऑफ द सेकेंड क्वार्टर. स्टार्ट ऑफ सेकेंड क्वार्टर मतलब अप्रैल में, 1 अप्रैल को 18,000 मेरा रिसीवेबल है, अनकलेक्टेड अमाउंट. आउट ऑफ विच 3,600 रिप्रेजेंट फेब सेल्स. सो अगर 10% के लिए 3,600 है तो 100% सेल्स के लिए हाउ मच? सो व्हाट विल कम? 100 into this divided by 10,000. So मेरा total sales is how much? 36,000. Now if I represent over here, ये 36,000 यहाँ पे डाल दूंगा. So मेरा बैलेंस देखो, this minus this minus this.
3600 बन रहा है. अंडरस्टूड? फेब का सेल्स अंडरस्टूड पक्का. सो हाउ मच इज द सेल्स फॉर द मंथ ऑफ फेब इज 3600. ये हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला था. कंप्यूट द टोटल सेल्स फॉर फेब्रुवरी एंड मार्च. अभी मार्च का भी फाइंड आउट करते. सो सेल्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च. फिर से कॉन्सेंट्रेट करो. हाँ, मतलब आपको समझ में आएगा. मुझे मालूम नहीं कितना है. 70% कलेक्टेड इन मार्च में ही 70% कलेक्ट कर लिया, तो इसका 70% ले लेंगे. मतलब अगर मेरा सेल्स 100 रुपीज़ है तो 70% मेरा 70 रुपीज़ यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा. सो बैलेंस 1 अप्रैल को कितना रहेगा? 30%. एग्रीड? यस और नो? सो या इसमें से मैं ये एलिमेंट माइनस कर दूंगा तो मेरा 30% बचेगा. सो 30% रिप्रेजेंट हाउ मच? 14,400. बराबर ना? 14,400 ऑफ मार्च सेल्स अनकलेक्टेड. सो 30% के लिए 14,400 है, तो 100% के लिए हाउ मच? सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 100 इंटू 14,400 डिवाइडेड बाय 30%. सो टोटल सेल्स फॉर मंथ ऑफ मार्च वॉज हाउ मच? 48,000. आया समझ में? अभी रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसको लिखेंगे कैसे, समझ में तो आ गया. अभी हाउ टू राइट इट, चलो लिखो. स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, स्टेट ऑफ सेल्स इन Feb and March. Details, percentage of collection, amount rupees. So percentage of collection में just यहाँ पे लिखता हूँ. 100% है तो इसमें कितना होगा? 70%. ये 20%. सो बैलेंस फॉर ओपनिंग Q2, बराबर ना? ओपनिंग Q2 का बैलेंस इज 10%. अभी समझ में आया? रहेगा ना कि नहीं? अभी आया कि नहीं समझ में? नहीं आया समझ में? बेस्ट ऑफ लक. याचं 2च महिन्याचं राहिले होतं. बॅलन्स फॉर ओपनिंग Q2. सो 10% के लिए 3,600 है, तो 100% के लिए 36,000, और यहाँ पे 30% के लिए 14,000 है, तो 100% के लिए 48,000. ये वर्किंग बना के रखो. So first part completed. We have completed first part. Now what they are asking, second one, compute the budgeted cash collection from sales for each month without prejudice to the answer to part 1. Assume that Feb sales equals to 40,000 and March sales without equals to 50,000. Now what does it means? ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए, without prejudice to your part 1, ये आंसर में कंफ्यूज नहीं होना है. डोंट गेट कंफ्यूज विथ दिस आंसर. दिस आंसर इज करेक्ट. हमने जो कर लिया
विदाउट प्रिजुडाइज मतलब डोंट इन्वॉल्व दिस आंसर विथ पार्ट 1. वो क्या बोल रहे, फेब्रुवरी सेल्स इज 40,000 एंड मार्च सेल्स इज 50,000. सो अप्रैल मई जून का कलेक्शन फाइंड आउट करना है. सो स्टेटमेंट ऑफ कलेक्शंस, ये उड़ा दो इसको. 1 मिनिट पाहिजे ले. ठीक आहे. हे बॅलन्सिंग हे फिगर आहे बरं का बाबा. याला तुम्ही कसं रिप्रेझेंट करता त्याच्यावरती आहे. Done. Now statement of cash collection. Cash collection. Particulars. April, May, June. See, as per the strategy means अप्रैल महीने में कौन से महीने का सेल हो सकता है, कैश कलेक्शन हो सकता है. अप्रैल का खुद का बराबर. मार्च का भी होगा, फेब का भी होगा, बराबर ना. और उसके पहले नहीं. देखो अभी फेब में जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम अप्रैल का कलेक्शन की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग ऑफ अप्रैल कलेक्शन. अप्रैल में सेल्स कितना है खुद का सेल्स 2 महीने पहले अप्रैल का. डोंट राइट एनीथिंग, आई एम गोइंग टू रब इट. अप्रैल सेल्स कितना है? हाँ 45,000 बराबर. ना आउट ऑफ 45,000 70% विल गेट कलेक्टेड इन मंथ ऑफ अप्रैल ओनली, बराबर. 20% will get collected in the month of June and 8% will get collected in the month of June. So अप्रैल का सेल्स देखो कैसे कलेक्ट होता गया. 44,100. 2% is uncollectible. 2% is uncollectible, बराबर. अंडरस्टूड और नॉट? ऐसा कलेक्शन होने वाला है. ओके. Now if we talk of April collection, so कौन से महीने का उसके पहले रहेगा? Just don't write anything, just try to understand first question. So इसके पहले फेब में कुछ सेल किया रहेगा, फेब का, मार्च का. ओके. नाउ फेब का सेल्स कितना है? सेल्स इन फेब 36,000. सेल्स इन रुपीज लिखता हूँ, इन रुपीज जस्ट. नाउ फेब विदाउट प्रेजुडाइज वो क्या बोल रहे हैं? 40,000. ओके. Just for understand, don't write anything. I'm telling you, don't write. We are just understanding. March 50,000. अप्रैल में कितना है? अप्रैल में 45, 50 and 60. 45, 50 and 60. ये सेल्स है. अभी ये सेल्स का कलेक्शन कैसे होने वाला है? ये सेल्स का कलेक्शन कैसे होने वाला है? So 70% collection 70% in same month. Agreed?
तो फेब का दिस इंटू 70%, सबका ऐसा ही है, एग्रीड। 20% इन नेक्स्ट मंथ, 20% इन नेक्स्ट मंथ। सो फेब का जो 40,000 हुआ था, इसका 20% कब आएगा, इसका 20%, इसका 20% एंड इसका 20%, एग्रीड ना। 10% ना, अभी कितना, 8% ना, 8% सर। 8% इन नेक्स्ट मंथ ना, 2 months, 2 months ऑफ सेल्स, ठीक है। 2 months ऑफ सेल्स मीन्स व्हाट, यहां से शुरू होगा फेब में इंटू 8%, एग्रीड। सर 40,000 चा 8% ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। 40,000 इंटू 8%, यहाँ पे 50,000 इंटू 8%, और यहाँ पे 45,000 इंटू 8%। बस आगे का आगे ऐसे आगे चलता जाएगा। सो हमको जो क्वेश्चन रिलेटेड, आवर क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू दिस 3 एलिमेंट। सो कलेक्शन in the month of April, May and June will be 44,700, 48,000 and 55,600. 20% understood? 20% understood? Purna understood zala. Good. Huh? Good. In the first attempt if you understood, not an issue. But now write it down. Now write it down. Sales लिख लो पूरा. Feb, March, April, May, June. Sales in rupees. Sales in rupees. Collection लिखो. 70% in the same month. So 70% in the same month. Same month में 70% लेके जाओ. खुद का सेल खुद के मंथ में हो गया. 20% नेक्स्ट मंथ, मतलब ये 40,000 का 20% नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। 50,000 का 20% अप्रैल में, 45,000 का 20% मई में, 50,000 का 20%, so and so forth. This cycle will continue now. बैलेंस 8 in 2 months ऑफ द सेल्स, क्या लिखा है यहाँ पे उन्होंने, 8% सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल, सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल्स। सो सेल्स होने के बाद दूसरे महीने में, दूसरे नहीं तीसरे महीने में 40,000 का 8% विल कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ फेब, फेब का सेल्स का अप्रैल, मार्च विल मई, April in June, again so and so forth, cycle will continue. So we've been asked total collection, तीनों का ही करना है, बाकी का टोटल नहीं लेना है, total collection in Q2. ठीक है, डन. सो सेकंड पार्ट इज ऑल्सो डन. हां झाला नाही, ओके. मला वाटलं तुम्हाला समजलं, तुम्ही स्वतःहून कराल.
चलो, let's go to the next illustration. Illustration number 34. New book, illustration number 43 na? 43. Page number 540. ABC Limited, a newly started company, wishes to prepare cash budget from January. Prepare a cash budget for the first 6 months from the following estimated revenue and expenses. So, कौन से कितने महीने का करना है? फर्स्ट 6 मंथ, जैन फेब मार्च अप्रैल मई एंड जून, ये 6 महीने इसका कैश बजट बनाने का है अपने को. सेल्स हैज बीन गिवन, मटेरियल दैट इज रेवेन्यू, मटेरियल हैज बीन गिवन, वेजेस, प्रोडक्शन एंड सेल्स इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. कैश बैलेंस ऑन 1st January is 10,000. Machinery is to be installed at rupees 20,000 on credit to be repaid by 2 equal installment in March and April. Sales commission at the rate 5% on total sales is to be paid within a month following the actual sales. Rupees 10,000 being the amount of second call may be received in March. Share premium amounting to rupees 2,000 is also obtained with the second call, may be received in March. Period of credit allowed by supplier 2 months. Period of credit allowed to customer 1 month. Delay in payment of overheads 1 month. Delay in payment of wages half month. Assume cash sales to be 50% of total sales. So हमको कैश बजट बनाना है ना. वी आर ऑन द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ बजटिंग. एक दूसरा फ्लेक्सिबल बजट करना है, वो आसान है. कैश बजट का एलिमेंट इधर देखना है. एग्जाम में अगर आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैश बजट का ज़्यादा रहता है. कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट दोनों में से कुछ तो भी आएगा. 40% प्रोबेबिलिटी कैश बजट, 50% प्रोबेबिलिटी फ्लेक्सिबल बजट and 10% probability what we did yesterday. चलो, in the books of cash budget, statement of cash budget for 6 months ended 30th June, Jan, Feb, March, April, May, June. See, whenever a cash budget is asked, we have to be very careful on one portion. Always first start with opening balance. Opening balance always start with. ये अगर मिस हो गया, if this is missed, और कुछ कॉलम कम हो गए क्या? नहीं ना. इफ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी एट एनी लेवल, कहाँ पे भी रह सकता है, स्टार्टिंग, बीच में, एंड में, कहीं पे भी नहीं भी दिया रहेगा तो भी स्टार्ट विथ दिस. यहाँ पे अगर मिस्टेक करोगे आप, वॉट एवर सोल्यूशन यू विल बी प्रोवाइडिंग, टोटल सोल्यूशन विल गो रॉन्ग. सो ऑलवेज स्टार्ट विथ ओपनिंग कैश बैलेंस. कहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस हम लोग जब जाएंगे रीड करते समय तब लिखेंगे. एड रिसीट्स, एड रिसीट्स, कुछ लाइन छोड़ना है, लेस पेमेंट्स. Should we start now?
नाव लेट स्टार्ट वन बाय वन. एबीसी काय झालंय? एनी क्वेरी? कंपनी विशेष टू प्रिपेयर कैश बजट फॉर द फर्स्ट 6 months रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. सेल्स दिया है, टोटल सेल्स हैज बीन गिवन. नाउ सेल्स मतलब पूरा कैश कलेक्शन आएगा क्या? सेल्स हो गया है, बट कैश कलेक्शन का कैसे दिया है? कैश बैलेंस ऑन 1st January इज हाउ मच? 10,000. चलो वो लिखते हैं. कैश बैलेंस ऑन 1st ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000 लिख लिया. ठीक है. अ मशीनरी is to be installed at rupees 20,000 on credit to be paid by 2 equal installment in March and April. 2 equal installment में उसको ये करना है, पे करना है. So what this information says that a new machinery is to be installed at rupees 20. 20,000 रुपये का खर्चा करना है. ओके, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीद लिया. टू बी रिपेड बाय 2 equal इंस्टॉलमेंट इन मार्च एंड अप्रैल. सो मार्च में कैश आउटफ्लो रहेगा कि इनफ्लो रहेगा? मतलब पेमेंट रहेगा कितना? मार्च में 10,000 रुपया और अप्रैल में 10,000 रुपया. सो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी मार्च में 10,000 रुपया बराबर, और अप्रैल में 10,000 रुपया. दैट्स इट. पेमेंट डाल दिया वहां पे. अंडरस्टूड? पेमेंट करना है मार्च और अप्रैल में 10,000 रुपया. अ सेल्स कमीशन एट द रेट 5% ऑन टोटल सेल्स इज टू बी पेड विदिन अ मंथ फॉलोइंग द एक्चुअल सेल्स. सो सेल्स कितना देना है? 5% कमीशन. कब देना है? सेल्स होने के बाद, इमिडिएटली नेक्स्ट मंथ में. मतलब अप्रैल का सेल्स, जैन का सेल्स है, उस पर कमीशन कब देना है? फेब में. फेब का सेल्स मार्च में कमीशन देना है. ठीक है. सो वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स कमीशन. इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी पहला इलिस्ट्रेशन इसलिए कर रहा हूँ. अदरवाइज आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. और कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स कमिशन. काय झालं मॅडम, आज खूपच आनंदी दिसतोय. हां, काय झालंय? सेल्स कितना सेल्स आहेत बोलो? हाउ मच इज द सेल्स? 20, 22, 28, 20, 22,000, 28,000, 36,000. आगे चल के ये कोई भी स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं. वर्किंग नोट, हाँ, डायरेक्ट शॉर्टकट मार सकते हो आप लोग. 30,000, 40,000. कमीशन कितना है? 5% कमीशन. पेड इन नेक्स्ट मंथ, पेड इन नेक्स्ट मंथ बराबर. सो फेब में कमीशन पे करना है. कितना पे करना है फेब में कमीशन? इसका जनवरी का सेल है, उसका 5%. अभी जैन में कितना कमीशन पे करना है मुझे मालूम नहीं. आई डोंट नो हाउ मच इज द सेल ऑफ दिसंबर, सो दैट आई कैन पे इन द मंथ ऑफ जनवरी. जो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नहीं है. ओके. सो मार्च में मुझे कमीशन पे करना है फेब के सेल्स पे. फेब का सेल्स इंटू 5%. अप्रैल में मार्च के सेल्स पे, मई में अप्रैल के सेल्स पे, और जून में मई के सेल्स पे. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू पे कमीशन. 5% कमीशन ऑन सेल्स. यहाँ पे 5% कमीशन ऑन सेल्स. सो जनवरी में 0 है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. सेम यहाँ पे आके प्लॉट कर दिए. नथिंग अदर देन. अंडरस्टूड? पक्का? पक्का ना?
मला फक्त आणि फक्त कॅश बघायचे. म्हणजे माझ्याकडे कॅश केव्हा येते, माझ्याकडून कॅश केव्हा जाणार. मेरे जेब में जिस दिन मेरे जेब में पैसा आने वाला है उस दिन का, उस मंथ का, उस पीरियड का इंफॉर्मेशन रखना है. मैंने सेल्स आज 10 करोड़ का कर दिया, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है, मेरे पास कुछ कैश है आज, कुछ नहीं. 3 महीने के बाद वो 3 करोड़ मिलेगा, दैट इज डिफरेंट स्टोरी. बट आज मेरे पास कैश कुछ है क्या? नो. ठीक. नेक्स्ट एलिमेंट, रुपीज 10,000 being the amount of second call may be received in the month of March. Second call money receipt है ना भाई, second call money कितना है? 10,000. कौन से महीने में मिलने वाला है? मार्च में. मार्च में 10,000 रुपये ये मिलने वाला है. अंडरस्टूड ना? सेकेंड कॉल मनी मालूम है ना आपको? काय शेयर कॉल मनी. फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, प्रीमियम विथ प्रीमियम. आपका फाइनल अकाउंट्स का पढ़ाई अगर हो गया होगा तो वो कॉल मनी मिल गया, सेकंड कॉल मनी. क्लियर? रिसिप्ट में क्यों गया ये? बिकॉज इट इज टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ मार्च. सेकंड, शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग टू 2,000 इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड ऑन सेकंड कॉल मनी इन द मंथ ऑफ मार्च. सो शेयर प्रीमियम वो भी कहाँ पे मिलने वाला है आपको? यहाँ पे. मार्च में ही 2,000 रुपये. सो मार्च में चांदी है, बहुत पैसा मिलने वाला है. हाँ. आफ्टर दैट नाउ इट स्टार्टेड. पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 months. सप्लायर मीन्स व्हाट? न डेटर्स का क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स ना सर, सप्लायर है तो सेल्स के लिए आएगा कि मटेरियल्स के लिए आएगा? मटेरियल के Sales के लिए लिए. आएगा सर. सेल्स के लिए आएगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग सेल्स? दे करेक्ट, दे आर करेक्ट. नहीं ना? पक्का कॉन्फिडेंट? देखो, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, मतलब मैं परचेस करूंगा तो सप्लायर मुझे क्रेडिट अलाउ करेगा ना. सो इट इज ऑन योर परचेसेस. सो मटेरियल परचेस आपने कितना किया जनवरी में? 20,000 रुपया. तो वो 20,000 रुपया पेमेंट कब करना है? 2 महीने के बाद, मतलब मार्च में. एग्रीड? आफ्टर 2 months ना. पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 months. सो if you have purchased material in the month of January, 2 months credit, मतलब January और February, it will be paid in the month of March. Agreed or not? ठीक है. अभी वर्किंग नोट करते हैं, आगे चल के वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. चलो, वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ पेमेंट टू सप्लायर. कंप्यूटेशन ऑफ पेमेंट टू सप्लायर. ऑन मटेरियल परचेसेस. कितना परचेस है? चलो बोलो मुझे, जैन में कितना परचेस है? जैन में, फेब में 14, मार्च 14, 22, 20. ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन. पेमेंट इन सेकेंड मंथ. क्या वर्डिंग क्या यूज किया? पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 months. पेमेंट ब्रैकेट 2 months credit. Payment 2 months credit term. So Jan will be paid in the month of March. Agreed?
इसके पहले के मुझे मालूम नहीं, इसलिए मुझे आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, आई डोंट हैव एनी डिटेल्स ऑफ हाउ मच इट वाज परचेज्ड अर्लियर। रहता तो मैं प्लॉट करता। सो फेब विल बी पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बराबर ना? 2 महीने का फेब एंड मार्च, अप्रैल में पे करना है। मार्च विल बी पेड इन द मंथ ऑफ मे, अप्रैल विल बी पेड इन द मंथ ऑफ जून। सो पेमेंट टू क्रेडिटर्स मटेरियल परचेस ऐसा आएगा, पेमेंट टर्म्स में आ जाएगा पेमेंट टू सप्लायर ऑन मटेरियल परचेस। 2 मंथ्स क्रेडिट टर्म्स लिखा तो भी चलेगा, वर्किंग नोट लिखा ही है इसलिए ज़्यादा कोई वरी नहीं है। अंडरस्टूड ना? पक्का? ऑनलाइन फ्रेंड्स है क्या नहीं? ऑनलाइन Yes, sir. फ्रेंड्स है कि नहीं? Understood, sir. अंडरस्टूड ना? Understood. Yes, sir. आफ्टर दैट पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, मतलब व्हाट? अलाउड टू कस्टमर मीन्स व्हाट? डेटर्स, Debtors. मतलब सेल्स, मीन्स सेल्स। ओके, सो वर्किंग नोट नंबर 3, computation of receipts from vendors, from supplier, from debtors, computation of receipts from debtors on sales। तो सेल्स हमको मालूम है, वी हैव ऑलरेडी प्लॉटेड सेल्स, यहाँ पे सेल्स। कलेक्शन कितने महीने का? 1 मंथ क्रेडिट है ना? Yes, sir. 1 मंथ क्रेडिट। कैश सेल्स वगैरह कुछ है क्या? हाँ आगे दिया है ना, देखो यहाँ पे हमको कंफ्यूज कर दिया। एज्यूम कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल्स, ये मिस कर देते तो हमारा प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है, सो टोटल सेल्स है ये, बराबर? टोटल सेल्स, उसमें से अभी नंबर ए कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना है? 50%, बराबर? 50%. एग्रीड? सो 50%, इसका 50% उसी महीने में कलेक्ट हो जाएगा। कैश सेल्स है ना? कैश सेल्स थोड़ी दूसरे महीने में पैसे लाके देगा कोई, नहीं ना? पक्का ना? बी क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स वो भी 50% है, बराबर? वो भी 50% है। Next month ना sir. हाँ सेल्स पॉइंट केलं बाबा, पहिले क्रेडिट सेल्स आहे। सो 20,000 मधले 10,000 कैश सेल्स है, 10,000 क्रेडिट सेल्स है। अभी कलेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, अभी कलेक्शन की बात करते हैं। कलेक्शन, सो कैश सेल्स तो एज इट इज पहले आ जाएगा, कैश सेल्स विद इन मंथ, बराबर? विद इन सेम मंथ, विद इन सेम मंथ है ना? सो कैश Yes, सेल्स sir. जितना था विद इन सेम मंथ आ गया। एग्रीड? एंड बी क्रेडिट सेल्स, बी क्रेडिट सेल्स 1 मंथ क्रेडिट टर्म्स है ना? 1 मंथ, Yes, sir. 1 मंथ क्रेडिट टर्म्स मीन्स व्हाट? अभी कितना क्रेडिट सेल है तुम्हारा? जैन का क्रेडिट सेल विल बी कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ फेब। February. फेब का क्रेडिट सेल विल बी कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च। सो टोटल कलेक्शन, सो इसमें कितना? 10,000, 21,000,
25,000. Understood ना? पक्का? Yes, sir. ऑनलाइन फ्रेंड्स क्लियर? Yes, sir. ठीक है. सो कैश कलेक्शन यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम सेल्स, रेफर वर्किंग नोट नंबर 3, 4, 5, 6 जो भी रहेगा नंबर, ये शो पर्पस के लिए नहीं बनाया है, रेफरेंस नहीं दिया तो एग्जामिनर को समझेगा कैसे कि यहाँ से यहाँ पैसे कैसे आ गए, हवा में उड़ के नहीं आए, हमने वर्किंग किया है उसका. डन. डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, यहाँ पे देखो ये हो गया अभी पूरा. डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 1 month, मतलब क्या, अभी ये ओवरहेड्स है, सी पेमेंट करना है, पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स. सी नाउ मैं वर्किंग नोट नहीं करता, आई विल डायरेक्टली शो यू. 1 month का डिले मतलब जनवरी विल बी पेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. सो जनवरी का कितना है 3,200, इट विल बी पेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 3,200. फेब विल बी पेड इन द मंथ ऑफ मार्च 3,300. March will be paid in the month of April 3,400. April will be paid in the month of March 3,500. And last May will be paid in the month of June 3,200. Understood na? Pakka. Same payment of sales overhead. Sales है ना? S&D overheads, sales and distributions. Same है, sales and distribution 800 will be paid in the month of Feb. तो एक बार गाड़ी चालू हो गया तो उसके आगे लिखते जाने का 800, 900, 900, 1900. अबे आपको क्वेश्चन आएगा 900, बाकी ये कब पे करेंगे वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा, अपने साइकिल में है नहीं वो. क्लियर? यस और नो? पक्का? अभी क्या बाकी है? डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ. वेजेस पेमेंट ही करना है, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस. रेफर वर्किंग नोट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 क्या है? 4 है सर, 4. ठीक है, ये सेल्स को उड़ा दो या ऊपर वाला उड़ा देता हूं मैं. चलो वर्किंग नोट नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस पेमेंट. वेजेस फॉर द मंथ. वेजेस कितना? वेजेस 4,000 बराबर ना? 4,000, 4,400. नेक्स्ट 4,600, 4,600, 4,000, 5,000. ओके. Now what they are saying, 50%, half of the credit terms है ना, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ. मतलब क्या होता है?
आधा इसमें आधा आगे। आधा आधा अभी, आधा आगे आगे मतलब क्या होता है? ठीक है, 50% तो करंट मंथ इसको में और फर्स्ट हाफ ऑफ 50% द मंथ नेक्स्ट बोलते मंथ हैं। में। सी 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 फर्स्ट हाफ, नहीं तो सेकेंड हाफ, फर्स्ट फर्स्ट हाफ पेड इन सेकेंड हाफ, बराबर, हाफ ऑफ मंथ, बराबर। फर्स्ट हाफ वेजेस, कुछ लिखो मत, पहले समझ लो। फर्स्ट हाफ वेजेस, फर्स्ट हाफ मंथ वेजेस पेड इन सेकेंड हाफ ऑफ मंथ। मतलब अभी जनवरी को मैं दो टुकड़े में बांटूंगा। 1 से लेके 15 तारीख का पेमेंट कब होगा उसका? जनवरी में होगा। तो इसका हाफ विल बी मेड इन द दिस मंथ, और बाकी 15 दिन का 16 तारीख से 31 तारीख तक फरवरी में पेमेंट होगा। सो सेकेंड हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ wages paid in first half of the month. Agreed or not? खूब कंफ्यूज के लिए मी, बहुत कंफ्यूज हो गए ना? मैं अलग तरीके से भी बताता हूँ। वेजेस पेमेंट करायचं आता 1 ते 15 तारीख झालंय, मला पैसा पाहिजे, किती तारखेला देणार? 16 तारखेला देणारच नाही, 16 तारखेला, बरोबर। 1 to 15th of the January will be paid in January itself, and 16 to 31st January जो मैं काम करूंगा वो मुझे मिलेगा 1st February। एग्रीड? अभी फेब में आऊंगा, यहाँ पे उस मंथ का आधा अभी मिलेगा, आधा नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। यहाँ पे 4600 1 ते 15 तारखेपर्यंतचा मिळून जाईल मला, आणि नेक्स्ट मंथ मध्ये अर्धा पगार। सो इन दिस वे आई विल कीप ऑन डूइंग दिस थिंग्स। सो मुझे पूरा पेमेंट कितना करना है ये पर्टिकुलर मंथ्स में? 2000, 4200, 4500, 4600। अभी अपने को ये पता तो चल गया कैसे पेमेंट लिखना क्या, कैसे, लेकिन हाँ हाँ ना, वो तो लिखेंगे उधर, वो तो समझ, इधर क्या लिखना है अभी? आप कंफ्यूज हो गए थे। फर्स्ट हाफ सैलरी पेड इन सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, बराबर ना? फर्स्ट हाफ का ये 2000 रुपये कौन सा मिला है? फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी रिसीव्ड इन सेकेंड विद इन द मंथ, ठीक है। हाफ रिसीव्ड विद इन द मंथ, हाफ इन नेक्स्ट मंथ। हाफ सैलरी, हाफ वेजेस received in same month, बराबर बराबर, and half wages received in next month। खत्म हो गया, बराबर ना? अभी टोटल पेमेंट, अभी ये ठीक लग रहा है आपको करने में, लेकिन जब ये वीक का पेमेंट करेंगे ना, वीकली पेमेंट, तो पेमेंट है पेमेंट ऑफ वेजेस, यहाँ पे रिफर वर्किंग नोट नंबर XYZ, यहाँ पे लाके चिपका देने का। डन? और कुछ बाकी है? और कुछ बाकी है? वेजेस का समझ में आया कि नहीं? पक्का? नाउ टेक इट ओवर हियर, टोटल रिसिट, टोटल रिसिट, डोंट इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस, हाँ, डोंट इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस नहीं लेना है। टोटल रिसिप्ट्स, डोंट टेक एनी ओपनिंग बैलेंस, टोटल रिसिट कर लिया मैंने।
डोंट टेक ओपनिंग बैलेंस इनटू दैट, लिया तो भी चल जाता है लेकिन हम लोग आसान करेंगे. टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट कर लिया. Now we will have to derive closing cash balance, closing cash balance. Now closing cash balance is what? Opening balance plus receipt minus payment. Opening balance plus receipt minus payment. ओपनिंग बैलेंस अभी मंथ ऑन मंथ करना है, डोंट मेक मिस्टेक, सबका एट ए टाइम नहीं करना है. मंथ ऑन पहले जनवरी शुड आई स्टार्ट या आपको टोटल लेना है? कर लो ले लो टोटल बना लो. ठीक है. नाउ क्लोजिंग बैलेंस कैसा? ओपनिंग बैलेंस कितना था? 10,000 बराबर. रिसीट इज 10,000 माइनस पेमेंट 2,000. कितना है? हाँ? पक्का? नाउ दिस क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस फॉर फेब. एग्रीड? जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ फेब. एग्रीड और नॉट? Huh? Now closing balance of Feb. 29. Huh? Online somebody was saying something. Continue, sir. Continue. Okay. Thank you. Opening balance plus receipt minus payment 29,000. Now this 29,800 will become opening balance of March. Now closing balance आएगा opening balance of March plus receipt minus payment 27,000. Now this will become opening balance of April. So and so forth. चलते जाओ. So at the end of the day, how much cash balance we are having? 36,000. At the end of 6 months, there is a closing balance or cash in hand बोल सकते हैं, closing balance of cash or cash in hand rupees 36,000. Done? पक्का? So cash budget is done, completed. कल हमने 6-7 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, आज 2 ही हुए हैं अभी तक. तो ये रहता है सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट लेक्चर में अपना बजटिंग कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. काय झालं? चलो, अंडरस्टूड एवरीबडी? पक्का? लास्ट? डन? ऑनलाइन फ्रेंड्स तो मेरे को कुछ बताएंगे नहीं, समझ में आया नहीं आया, कुछ लेना देना नहीं. हाँ, Understood, sir. थैंक यू. illustration number next.
फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट. ठीक है. Illustration number 35. Now, should I tell what is fixed expenses, what is variable expenses, what is semi-fixed, semi-variable expenses? Should I tell? Pakka. Fixed means what? Fixed. At. नाही और पुढचं स्टेटमेंट बोलू द्या ना मला अजून. Fixed means fixed at all level of production volume. Means even if production is there, not there, high, low, whatever may be, increase, decrease, expenses will remain same. For example, rent of the factory. खत्म. सबसे आसान चीज है. प्रोडक्शन करो या ना करो, एक करो, 0 करो, 10 करो, लाख करो, रेंट 10,000 रुपये रेंट देना है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रेंट देना है, इट विल हार्डली मेक एनी इम्पैक्ट. Second is variable. Variable means what? Variable means the expenses which increase with the increase in production and decreases with decrease in production. Correct? For example, mobile manufacturer है तो बैटरी का कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन. If I manufacture 0 mobile, 0 बैटरी कंजम्पशन. If I manufacture 1 मोबाइल, एक बैटरी का कंजम्पशन होगा. वो एक बैटरी का अगर खर्चा 5,000 है तो 5,000 रुपये. If I manufacture 100 mobiles, 100 बैटरी कंजम्पशन. वेरिएबल. प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन के साथ डिक्रीज होगा. ना तो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट इज सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड और सेमी फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल. इट मीन्स व्हाट? अप टू सर्टेन लेवल वेरिएबल, उसके बाद फिक्स्ड, और अप टू सर्टेन लेवल फिक्स्ड, उसके बाद वेरिएबल. वाइस वर्सा दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है. अप टू सर्टेन लेवल फिक्स्ड, आफ्टर दैट वेरिएबल. मतलब मैं अगर 10, 15, 20 हज़ार प्रोडक्शन करूंगा तो एक्सपेंसेस फिक्स रहेंगे, लेकिन 15 के ऊपर एक यूनिट भी बनाऊंगा तो नाउ इट विल स्टार्ट वेरिएबिलिटी. दैट इज सेमी फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल. नाउ दैट वाइस वर्सा भी है, सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड. मीन्स अप टू सर्टेन लेवल वेरिएबिलिटी के साथ चलेगा, उसके बाद वो कितना भी प्रोडक्शन करो फिक्स्ड है, कोई फर्क नहीं, वर्किंग अपना सेम ही आने वाला है. ठीक है. ओके. नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग वी विल स्टार्ट विद दिस लास्ट एलिमेंट ऑफ बजटिंग एक्सरसाइज, दैट इज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग एक्टिविटी. अ कंपनी मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट एंड हैज प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ईयर. टर्नओवर दिया है उन्होंने 70, 80 एंड 90% पे. सेल्स डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिए हुए हैं, टोटल कॉस्ट गिवन एंड प्रॉफिट इज आल्सो गिवन. कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स इफ द बजट इज फिक्स्ड एट 45% लेवल ऑफ एक्टिविटी. सो we have been given the level of activity of 70, 80, 90%. हमको कौन से लेवल पे फाइंड आउट करना है? 45% पे. ऐसा होता है इसलिए 39 मार्क्स मिलता है. ठीक है. कॉन्सेंट्रेट करो. बजटिंग आसान लगने लग गया, कॉन्सेंट्रेशन गया. ठीक है. चलो, शुड आई डिलीट इट? कैश बजट. Statement of flexible budget. Statement of flexible budget. Particulars, level of activity, capacity, level of level of activity or sales.
सेल्स दिया है, सेल्स कितना है 70% ना, 70, 80, 90 एंड 45, ये आपने को फाइंड आउट करना है ना, बराबर ना। सेल्स लेवल ऑफ एक्टिविटी, सेल्स रुपीज टर्म्स, सेल्स इन रुपीज, टर्नओवर कितना दिया है 70% पे 2,10,000, एग्रीड। 80% पे 2,40,000, 90% पे 2,70,000. Now tell me what will be the level of activity at 45%. ठीक है, now please try to understand what we are doing. So, things are simple. If you understood this problem na, your budgeting is completely done, no issue. Now what does it means, देखो अगर 70% कैपेसिटी पे, जस्ट डोंट राइट एनीथिंग, 70% कैपेसिटी पे सेल्स इज 2,10,000, ओके, क्या हो रहा है परसेंटेज में, क्या हो रहा है, 70% कैपेसिटी पे सेल्स इज 2,10,000, चला ओके, 2,10,000, ओके। सो 80% कैपेसिटी में कितना होना चाहिए, दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय, बराबर 2,40,000 है, इधर भी 2,40,000 है, मतलब तुम्हारा सेल्स का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग सेइंग। सेल्स बढ़ गया, परसेंटेज 70% बढ़ से 80% तक गया, सो 2,40,000 हो गया। 70% के लिए 2,10,000 है, तो 90% के लिए कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2,70,000 दिया भी उन्होंने, कितना 2,70,000, मीन्स सेल प्राइस इज नॉट चेंजिंग, इट मीन्स व्हाट, देन 70% के लिए इतना है, तो 45% के लिए कितना, अंडरस्टूड, पक्का। तो सेल्स टर्नओवर इज 1,35,000, पक्का। ऑनलाइन फ्रेंड्स अंडरस्टूड, ए बाबा नो ते चालू आहे का नाही रे, Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रीमिंग चालू आहे का नाही, Yes, sir. Understood. Understood. स्ट्रीमिंग चालू आहे ना, हो हो सर. सर. हो सर. इन बिटवीन सांगत चला रे, बंद जर झालं तर घरी जाऊन मेसेज वाचण्यात काय मजा नाही आहे ना, दिन तो लेक्चर तो खत्म हो जाता है। ठीक है, सेल्स हो गया, नाउ विल गो फॉर डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड, हाँ, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 17,780, ओके, वो भी ऐसा ही है 70, डोंट राइट एनीथिंग, प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट अंडरस्टैंड इट। 70% सेल्स होता है मेरा, डायरेक्ट मटेरियल कितना है 17,780, एग्रीड। अगर मेरा 80% अगर सेल्स रहेगा तो कितना है, आई एम जस्ट क्रॉस चेकिंग वेदर माई मटेरियल कॉस्ट इज ऑल्सो चेंजिंग, वेरिएबल और फिक्स्ड है कि नहीं। सो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 20,320 है, यहाँ पे कितना है 20,320, मतलब इट्स वेरिएबल। सेल्स बढ़ गए, खर्चे भी बढ़ गए, एक ये तरीका, और एक तरीका बोलता हूँ, ये एक तरीका है। दूसरा 90% के लिए भी चेक कर लेते हैं, कितना आ रहा है 20,000। सो वैसे 45% के लिए भी चेक कर लेते हैं, फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, 45% के लिए इतना आएगा। दिस इज वन ऑफ द वे, ओके। सो इट शोज दैट द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस इज व्हाट, वेरिएबल। अभी दूसरा तरीका कैसे फाइंड आउट करना है, देखो 70% 17,780 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी, वॉल्यूम कितना है 70%, पर यूनिट कितना आता है 2.4 पर यूनिट, मतलब अभी पर परसेंटेज मत बोलो,
₹2.4 है ना? नहीं, 17,780 ये कितने परसेंट के लिए है? 70% के लिए। एग्रीड? 70% के लिए है। सो पर परसेंटेज कितना आएगा? 17,780 डिवाइडेड बाय 70%, 25,400 पर परसेंटेज। कुछ गड़बड़ मार रहा हो क्या? डोंट टेक, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, डोंट वरी। नाउ इफ आई गो एट 80% कैपेसिटी, 80% के लिए 80% हो गया यहाँ पे। अमाउंट कितना था 80% के लिए? 2320 सेम आ गया। पर परसेंटेज सेम आ रहा है। वैसे अभी मैं 90% के लिए जाऊंगा, 22,860.90 पर परसेंटेज। सो मीन्स व्हाट? इट इज वेरिएबल। पर यूनिट इट इज फिक्स्ड। हम इसको क्वांटिटी कर देते हैं, इसको 70 क्वांटिटी, 80 क्वांटिटी, 90 क्वांटिटी, बराबर ना? सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड, टोटल लेवल पे वेरिएबल है। यस और नो? Yes, sir. पहला लेक्चर का डेफिनेशन है दे, व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट फिक्स, टोटल लेवल वेरिएबल, एंड फिक्स्ड कॉस्ट per unit variable, total level fixed. Fixed. So now at 45% पे ये अगर मैं फिक्स्ड एलिमेंट है तो कितना आएगा ये? 11,430। दो तरीके, अंडरस्टूड? गो बाय एनी वे। सो हमको पहले तो फाइंड आउट करना है। चलो अभी बोलता हूँ। मटेरियल के लिए कंप्यूटेशन ऑफ nature of expenses, computation of nature of expenses means what? Variable or fixed or semi variable fixed, semi variable semi fixed। मटेरियल का लेते पहले, मटेरियल का, मटेरियल। So at 70%, 80%, 90%, यहाँ पे अगर वॉल्यूम रहता तो बहुत अच्छी बात रहती। कितना है मटेरियल? दिया है ना उन्होंने, 17,780, 20,320, 22,860 एंड लास्ट अभी और एक बनाना है अपने को 45%। डन। सो मटेरियल पर परसेंटेज, पर यूनिट बोलो, पर परसेंटेज बोलो, पर यूनिट ऑफ परसेंटेज। नाउ पर अपना यूनिट ऑफ परसेंटेज टोटल मटेरियल, पर यूनिट इज कमिंग टू हाउ मच? 24,000। नाउ 45% पे अपने को मालूम नहीं, नाउ इट विल रिमेन सेम। सो ये this element will be derived like this, 11,450। Understood? पक्का? दोनों I have given you 3 options, now go by any way, correct आना चाहिए। So direct material यहाँ पे हम लोग ये लाके डालते हैं। Direct material, nature of expenses is variable, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस इसका डायरेक्ट मटेरियल का वेरिएबल। ठीक है, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस इज वेरिएबल। पहले का फाइंड कर दिया हमने, मटेरियल कंप्लीटेड, डन।
पक्का? यस और नो? यहाँ पे परसेंटेज यूनिट रहता तो फिर बहुत आसान जल्दी समझ में आता है, आएगा आगे चल के। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस फॉर, ये हमने मटेरियल का कर दिया। दूसरा, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस मटेरियल के बाद कौन सा है? लेबर, बराबर ना? लेबर, लेबर कितना है अभी टोटल लेबर? बोलो। 44,800, 44,800 एग्रीड। दूसरा 51,200, 51,200। तीसरा 57,600। So this is also per unit is fixed. It means nature of expenses is variable. Agreed ना? So यहाँ पे कितना आएगा? 45% into 64,000. So direct labor, that is also variable. Understood? Yes or no? नहीं? काय कायना गुगली पडते का? नाही ना? नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कंप्यूटेशन ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है बोलो? प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है? 30,500। हाँ, 32,000, 33,500। Now tell me what nature of expenses is this? वेरिएबल है क्या? वेरिएबल है क्या? नहीं है, बिकॉज कुछ भी सेम नहीं आ रहा है, फिक्स नहीं है। क्यों? एट टोटल लेवल पे भी, टोटल लेवल पे भी ये अलग अलग है, बराबर? टोटल लेवल पे भी अलग अलग है, पर यूनिट लेवल पे भी अलग अलग है। सो दिस इज नाइदर फिक्स्ड नॉर वेरिएबल। सो दिस नेचर ऑफ एक्सपेंस इज व्हाट? सेमी फिक्स्ड, सेमी variable. Now we will have to find out what is the element of fixed nature and variability in this. So variable overheads per unit, variable overheads per unit is equal to change in, हमने किया था ना, change in expenses, हाँ, change in expenses divided by change in volume, वॉल्यूम और एक्टिविटी। तो हम लोग ये 70 और 80% का लेते हैं पहले। चेंज इन एक्सपेंसेस कितना है? चेंज इन एक्सपेंसेस 32,000 माइनस 30,500 डिवाइडेड बाय परसेंटेज कितना हो रहा है? 80% माइनस 70%। So variability is how much? 15,000 per percentage. Agreed? अभी total overheads कितना है? Total overheads, this is at overheads, total overheads at 70%, 80%,
90%, 45%. टोटल ओवरहेड्स, टोटल प्रोडक्शन ना, कौन सा है ये? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ओ माय गॉड, 9 मिनट ही बाकी है अभी अपने पास, खत्म करना है इसको जल्दी से, फास्ट। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 70%, 80%, 90% एंड इतना कितना था अपना? उसमें से वेरिएबल कितना है? वेरिएबल विल बी फिक्स्ड एट ऑल दिस लेवल? नो, sorry, variable is how much? 15%, 15,000 at this level. So how much is fixed? Fixed is this element minus this element, 15,500. Agreed? Now per unit variable overheads per unit, तो कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, 15,000 इंटू 70%, सॉरी माई मिस्टेक, 15,000 पर परसेंटेज है ना ये? येस सर, फिक्स 20,000 येते सर, मला वाटलं माझं पण चुकलंय, पण 20,000 येते सर. सरेंडर्ड, एग्रीड. 15,000 इज पर युनिट, पर परसेंटेज आहे. चुकलं चुकलं. तर सायमल्टेनियस इक्वेशनने ते सोपं जाते सर. हा, तुम्ही इंजिनियर मॅडम, तुम्हाला ते जाईल सोपं. इथं सायमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आम्हाला नाकी नव येतं. नाही मला ते येतं. कशाला, हे सोपं आहे ना. दिस इज इजी. नाउ चेंज इन एक्सपेंसेस एट, दिस वॉज एट 70%, राइट? एट 70% के लिए. अभी 80% के लिए, 80 to 90% के लिए कैसे देखो, 80 to 90%, 32,000, 33,500 minus 32,000 divided by 90% minus 80%. कुछ भी करो, मतलब इसमें सेम ही आने वाला है. आंसर इज गोइंग टू कम सेम. 15,000 ही आने वाला है. पर काय झालं? ओ 900% कर दिया. 15,000 पर यूनिट है. सो वेरिएबल इज व्हाट? 15,000 into 80%, 15,000 into 90%, 15,000 into 45%. Now balance is fixed cost, बराबर. टोटल में से वेरिएबल निकाल दूं, फिक्स्ड. टोटल में से वेरिएबल निकाल दूं, फिक्स्ड. Now this fixed will remain fixed, so total will become this plus this. Understood? ये नहीं समझ में आया तो आज डोंट वरी, कल नेक्स्ट लेक्चर में यही अंडरस्टैंड करना है अपने को पूरा डिटेल में. थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर. पक्का? डन, श्योर. लास्ट वाला है, समझ लक्षात आलंय का? ओके. नाउ व्हाट विल बी आवर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स? दिस विल कम ओवर हियर. नहीं सॉरी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 4 5 जो भी है. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स. देखो एडमिन ओवरहेड्स का देखो, 17,000 17,000 17,000, इट मीन्स व्हाट? इट इज Fixed. फिक्स्ड इन नेचर, बराबर ना. सो 17 सब जगह पे 17 आ जाएगा. 45% पे भी 17 ही आ जाएगा, बराबर ना. इट बिकम्स वेरी इजी. सो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और टोटल एक्सपेंसेस, एंड नाउ इट बिकम्स द प्रॉफिट. प्रॉफिट सेल्स माइनस,
So at 45% level capacity, we will be earning a profit of rupees 51,020. Illustration number 47, old book, page number 550. Illustration number 47, page number 550, old book. And new book में illustration number 37. 37 नहीं, sorry, 37 नहीं. 38 is homework. ये प्रॉब्लम होमवर्क के लिए है. कुछ नहीं, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट फाइंड आउट करना है. ठीक है. इलिस्ट्रेशन नंबर 46 छोड़ो, इसमें एक ही कर लेता है होमवर्क. उतना होमवर्क के लिए आपको. सर 50 सेम है सर 43 च्या सारखं. एक्झॅक्ट नाही पण सिमिलर आहे. इलिस्ट्रेशन नंबर 50. ओल्ड बुक मध्ये सर 50. कॅश बजेट येते. येस सर 43 सारखं आहे काय. नाही नाही, ठीक आहे. कॅश बजेट अजून एक्सपर्ट नाही झाले तुम्ही. ओके Okay, सर. so let's stop over here.